Hello students, we are going to do the textual analysis of the ode on aggression and written by John Keats. And in previous videos, we have studied about the biographical informations of John Keats and the characteristic of romantic age. In another video, we have discussed about odes and all. And here in this video, we are doing the textual analysis of this ode. Please read the text with me and try to understand it so that you can attend in the examination. And this ode is about an urn which is seen by John Keats at a museum or somewhere, and looking that urn, he comes to know about the beauty, and his ideas about eternity of beauty comes. I mean, he expresses his ideas about the eternity of beauty, and he says that the truth is beauty and beauty is truth. और इस ये जो किड्स की जो आइडियोलॉजी है, हम इसको हमारी आइडियोलॉजी जो इंडियन सत्यम शिवम सुंदरम से यदि तुलना करें तो सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है। तो सत्यम शिवम सुंदरम से कहीं न कहीं हल्का सा मेल खाती हुई आइडियोलॉजी है। तो जो फिलोसफिकल आइडियोलॉजी जो है जॉन किट्स की, ही इज़ इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक ब्यूटी, ग्रीक आर्ट, एंड ही हैज़ expressed in his various creations. So we are going to study its text. I start here. The poem starts with addressing that urn. Urn एक जैसे अपन ये कहें कि गुलदस्ता या पोट जो सजाने के काम वगैरह आते हैं, चीनी मिट्टी के इस तरह से बने हुए जो होते हैं। तो म्यूजियम में वो एक पोट देखता है और उस पोट पर जो सिनेरियो हैं, उस सिनेरियो को देख करके उसके मन में जो आइडिया आते हैं, उन आइडियाज़ को वो ओड के रूप में, पोएम के रूप में डिस्क्राइब करता है। और एज ही इज़ अ पोएट, हिज इमेजिनेशंस आर फार बियॉन्ड फ्रॉम आवर लिमिट, एंड he thinks it in another way. He goes in the world of imagination, and how looking an urn, the ideas about beauties are expressed. It is really wonderful. Please see to the text. He says that you still unravished bride of quietness, you foster child of silence and slow time, Sylvan historian, you can thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. What leaf fringed legend haunts about the shape? See students, in first stanza we see here three metaphors, and which are these: unravished bride of quietness, foster child of silence and slow time, and Sylvan historian. मतलब ये जो कविता जो स्टार्ट होती है वो सीधा ही उस अर्न को एड्रेस करते हुए कवि स्टार्ट कर देता है। जो अर्न, जो वेसल, जो बर्तन जो उसको दिखता है, पोट, उसको देख करके कवि सीधी कविता स्टार्ट करता है और वो उसको एड्रेस करता है कि यू स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस. You know, bride, a newly married woman, a newly married girl, and unravished bride, you go through its meaning, mean a girl who has been made ready, who has been get decorated to get married, but she is in that condition, mean as she is sitting in that reception, जैसे रिसेप्शन में लड़की बैठी है तैयार होकर के, सुंदर होकर के शादी के लिए, है ना, तो वो बस रिसेप्शन में बैठी है, वो उतनी की उतनी वैसी ही सुंदरता उसकी, जिस तरह एक तरह से वो दुल्हन शादी के लिए तैयार होती है, ठीक उस तरह से वो तैयार हुआ है, लेकिन वो वहीं उसी स्थिति में है परमानेंट. तो ही सेइंग दैट ही इज दैट अर्न इज लाइक एन अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ वाइटनेस, मतलब शांत और मीन unflowered, or we can say that unviolated, like an unviolated bride, unviolated girl, he is there. And you foster child of silence and slow time. दूसरा जो है, you foster child of silence and slow time. The time is also still, time is not moving for that urn, and it is not expressing anything. So it seems that the urn is a फोस्टर चाइल्ड, मीन अडोप्टेड चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम. जैसे वो
मतलब समय ने समय और गति दोनों ही रुक गई है, और उस तरह का जो अर्न है, जो वेसल हैं, वो समय और गति ने उसको, उसके ठहराव ने उसको गोद ले लिया, उस ठहराव का बच्चा हो, इस तरह से उसको दूसरी उपमा देता है. एंड थर्ड वन इज सिल्वियन हिस्टोरियन हु कैन नॉट दस एक्सप्रेस. एंड थर्ड वन इज third metaphor, which is that Sylvian historian, mean that urn is like a historian who is telling a story, who is telling the past of the Sylvia, of the place. So the poet uses three metaphors here and addresses the urn, saying, unravished bride of quietness, you foster child of silence and slow time, and Sylvian historian. These three metaphors are used here for that urn, which has been painted with a flowery image. And looking that image, the poet is developing his poem. Okay, and then he says that a flowery tale more sweetly than our rhyme, and the poet says that the tale, mean that scenario which has been painted on that vessel, on that urn, is telling a story, and that might be more better, that might be more enjoying, that might be more sweet than the stories of our world, mean the stories of our life, mean the stories of men are full of happiness as well as of sorrow. Mean we don't have eternal happiness. If there is a happiness in our life, sometime we feel sorrow also. If we are winning in our life, sometime we may lose also. So we have the binary oppositions in our life. We are not in a linear, we don't move in a linear direction. We have binary opposition. मतलब हमारे साथ जो है मानव के जीवन में सुख है तो दुख है, हंसी है तो मतलब हंसी है तो रोने का भी जो गुण है वो, या रोने की जो प्रक्रिया वह भी है, मतलब हंसना रोना, सुख दुख, हारना जीतना, हमारे साथ में हमेशा अपोजिशन, एक चीज़ के साथ दूसरी अपोजिट चीज़ भी है. बाइनरी अपोजिशन जो सोसर ने कहा है वो हमारे साथ में है. लेकिन द स्टोरी विच इज़ पेंटेड ऑन दैट अर्न, that has only happiness. There is nothing like sorrow. तो जो कवि कहता है कि ये जो तुमने जो ये कहानी कही, पेंट कर रखी है, जो इमेजरी बना रखी है, ये वास्तव में जो है वो फ्लावर टेल है, वो बहुत ही खुशी वाली हैं, और ये हमें लगता है कि हमारी जो टेल्स हैं, हमारी जो कहानी है, उनसे भी ज़्यादा अच्छी होगी. एंड देन ही सेज, अब उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पोइट के. वी हैव रेड द 5 लाइन्स. वॉट ली फ्रिंज लिजेंड हॉर्न्स अबाउट द शेप. इसके ऊपर जो फ्रिंज्ड जो कहानी जो इमेजरी जो बनी हुई है वो हम सबको आकर्षित करती है, और ये हमारे से कहानी से और अच्छी कहानी होगी. ऑफ डेटीज और मोर्टल्स और ऑफ बोथ. अब वो क्वेश्चन पूछता है कि द इमेजेस विच आर पेंटेड हियर, आइदर दीज आर ऑफ ह्यूमंस और ऑफ डेटीज. मतलब ये जो सीनरी जो बने हुए हैं ये इंसान हैं या देवता. द पोएट डजंट नो, सो ही आस्क एंड ही सेज इन टेम्पी और द डेल्स ऑफ आर्केडी. और फिर वो कहता है कि इन टेम्पी मीन दे आर द हैबिटेंट्स ऑफ टेम्पी और द आर्केडी. टेम्पी जो है वो गॉड्स का प्लेस है, और आर्केडिया पीपल लिव देयर. सो ही सेज वेदर दे बिलोंग टू द टेम्पी और द डेल्स ऑफ आर्केडी. फिर वो पूछता है व्हाट मैन और गॉड्स आर दिस. भाई कौन से इंसान हैं, ये कहाँ के निवासी हैं, या कौन से देवता हैं. व्हाट मेडन्स लोथ एंड व्हाट आर दिस बोथ. मीन व्हाट मेडन्स मीन द गर्ल हु आर पेंटेड देयर, और अ ब्राइड, अ गर्ल हु इज पेंटेड देयर. एक लड़की का फोटो उस पर बना हुआ है. तो वो कहता है हु इज दिस मेडन एंड व्हाट मेड परसूट्स, व्हाट अ स्ट्रगल टू एस्केप, व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रेल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी. और फिर वो कहता है कि वो व्हाट दे वांट, व्हाट आर वेयर दे आर दे गोइंग, विच सॉन्ग दैट इज प्लेड देयर. एक जो पाइपर्स हैं वो सॉन्ग का सीन इमेजरी बना रखी है, तो उसको देखकर कहता है कि ये कौन सी
कौन सिंगर है। तो फिर है heard melodies are sweet but those unheard are sweeter therefore you so pipe play on। फिर उसको कहता है, कभी उसको देख करके उसको पाइपर्स, एक म्यूजिशियन जो म्यूजिक का बजाते हुए का फोटो बना हुआ, तो उसको देख करके कहता है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, मतलब जो चीज़ें हम, जो म्यूजिक हम सुनते हैं वो निश्चित रूप से स्वीट होता है, अच्छा होता है, लेकिन अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर देन दोज। तो जो म्यूजिक नहीं सुना जाता है ये म्यूजिक और भी ज़्यादा अच्छा, और भी ज़्यादा आनंदित करने वाला होगा। और ये कैसे कि स्टूडेंट्स, द आइडियाज दैट प्लेटोज आइडियाज मीन द क्रिएशन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट आइडियाज, मतलब ओरिजिनल आर द आइडियाज। कोई भी जो आर्ट है वह सबसे पहले उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो उस आइडिया है। और जैसे कोई म्यूजिशियन है तो कौन सा म्यूजिक प्ले करे, क्या उसकी धुन होगी, कैसे बनाएगा, सबसे पहले उसके दिमाग में आएगा, वो ओरिजिनल है। फिर उसको जो परफॉर्म कर रहा है वो उसका सेकेंडरी फॉर्म है। इसी तरह से कोई पेंटर है तो पेंटिंग बनाने का उसके दिमाग में जो आइडिया आता है वो आइडिया दैट इज ओरिजिनल। सो ही सेज दैट द art is thrice removed in the, if we read the criticism, Plato said so। So it is also here that the कि जो चीज, जो म्यूजिक हमने नहीं सुना है और जो जिस म्यूजिक का जो आइडिया उस पोएट के दिमाग में होता है, उस क्रिएटर म्यूजिशियन के दिमाग में होता है, वो नेचुरली परफॉर्म्ड म्यूजिक से ज़्यादा अच्छा होगा। सो ही सेज दैट द हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो इस तरह से, एंड देन सो यू प्लीज कंटिन्यू singing, and the song nor ever can those trees be bare, bold lover, never can you kiss you winning near the goal yet do not। और फिर वो जो कहता है कि यो द ट्री which is painted in that image, this tree also will never shed its leaves। वही जो पेड़ जो बना हुआ है वो कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराएगा, कभी खत्म नहीं होगा। But another thing that the girl and lover who are painted in that on that urn, they will never be able to kiss or express their love physically, mean by contact। तो he says that कि यहाँ जो इमेज जो बनी हुई है ये भी जो लवर है वो हमेशा ऐसे कैसे ही रहेंगे, ये भी कभी भी अपना जो प्रेम का जो प्रदर्शन है वो नहीं कर पाएंगे। सो ये सोच करके कवि को थोड़ा सा मतलब क्या कैसे दुख वाली बात उसको होती है। एंड शी कैन नॉट फेड यू हैज़ नॉट ब्लिस फॉर एवर विल यू लव एंड शी बी फेयर फिर वो कहता है या लेकिन योर लव विल नेवर बी फेडेड अवे, तुम्हारा जो प्यार है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एंड द गर्ल द ब्राइड हु इज़ पेंटेड देयर शी विल ऑल्सो नेवर बी एजेड, कभी भी उसके ऊपर उम्र का असर नहीं होगा। एंड हैप्पी बाउज दैट कैन नॉट बी शेड योर लीव्स नॉर एवर बी द स्प्रिंग अड्यून एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनबियर। तो वो कहता है कि ये जो सिनेरियो है इसमें जो जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। और इस तरह से एंड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू मोर हैप्पी लव मोर हैप्पी लव। तो ही सेज दैट द म्यूजिक विच इज़ पेंटेड देयर, द सिनेरियो विच इज़ पेंटेड देयर, it will be always ever, mean the poet says that I will also get the age, I will also become old, and one day our mortal life will be ended, but the life which is painted on the urn will be as it is ever, and forever warm and still to be enjoyed, forever panting and forever young, all breathing human patience for a boo that leaves a heart high sorrowful and colored, and a burning forehead and a parching tongue। एंड इट सेज दैट द ह्यूमन जो लव है वह विद द पैसेज ऑफ टाइम वी गेट टूवर्ड्स आवर एंड, आवर मीन आवर लव, आवर बॉडी, आवर मीन थिंग्स आर नॉट परमानेंट बट द थिंग्स विच आर पेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटी ऑन द अर्न आर फॉर एवर। तो कभी मैं उस सीनरी को देख करके उस दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कौन है ये, किसका चित्र है, और ये जो पेड़ है ये भी हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये लवर जो अपनी उस प्रेमिका के लिए गा रहा वो हमेशा ऐसे ही गाता रहेगा, और ये चीज़ें कभी भी नष्ट नहीं होगी। यानी कला जो है वह हमेशा जीवंत रहती है, मानव जो नष्ट होता है लेकिन कला जो है, आर्ट जो है वो हमेशा अलाइव रहेगी।
this is its first stanza. Till line 30 we have done, see its textual analysis. We will start it, no, its next part we will start in our next video.